Assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. Welcome to the class of microwave engineering. And sorry for 15 minutes delay. There was some net problem at my end. So that's why I started class a little bit late. Okay, so uh, last time we discussed the problem of wave reflection from a media interface. And we consider a very simple case in which wave was supposed to incident normally at the boundary. Okay, so what we have already covered is normal incidence case. So just to refresh your memory, what we considered was that if there is a boundary z equal to 0 is the location of the boundary. On the left side, we have medium 1, and on the right side, we have medium 2. So we consider the situation in which we assume that wave is incident on a boundary in such a manner that it is uh, making an angle of 90-degree with this boundary. And then we saw that there are two waves that will be produced because of the change in the media. So any wave that is traveling in this media, when it encounter another media, so the possibility is some part of the signal will be reflected and some part of the signal will be transmitted into medium number two. So we derive equations that now can help us to find out that how much is going to be the reflection and how much is going to be the transmission. And what we found was that the parameters that will tell us about the amount of reflection and transmission, we represented them with this notation, gamma, which is the symbol for reflection coefficient. And we found that reflection coefficient, its value depends on the medium intrinsic impedance. Okay, so this medium will have its own intrinsic impedance, eta 1. This medium will have its own intrinsic impedance, eta 2. So how much is going to be reflection? That is a function of eta 1 and eta 2. And we also derive the equation for capital T, which is the symbol that we used for transmission coefficient. And this transmission coefficient, its value also depends on the medium properties, that is eta 1 and eta 2. So this is something which we have covered in our last lecture. And today we are going to generalize this particular case to oblique incidence case. So let's find out how we are going to analyze this problem, what is going to happen to the expressions for reflection and transmission. And later on, once we derive the expressions for reflection coefficient and transmission coefficient for oblique incidence case, then we will find out that is it possible to get the normal incidence case from the oblique incidence case. Okay, because oblique incidence case is going to be a general case. Okay, so today we are going to consider oblique incidence case. So let me first draw the figure with respect to which we will be working. So the coordinate system that I'm considering is like this. We have
coordinate system such that this horizontal line represents z-axis, this vertical line represent x-axis, and as before, y-axis will be in the direction that is normal to the screen. Okay. Again, this position that is z equal to 0 plane is going to be our boundary. On the left side, we have medium 1, and on the other side, we have medium 2. This medium will be characterized by its properties, permeability, and permittivity. Medium 2 will be characterized by its own permeability, mu2 and epsilon 2. And now we are going to consider a situation that wave is incident like this. So the arrow that I'm going to draw is going to represent the incident wave. Okay, so this is going to be the direction of the incident wave. So we will represent, let's assume that this line that I am considering is this one. This line is in a direction that is normal to this plane. Okay. So, so this is normal, normal to the boundary. So as before, what can happen? Some part of the incident wave will be uh, reflected. So let's assume this is the arrow indicating the direction of the reflected wave. So reflected wave will be traveling in this direction, and the other part, some part will be transmitted. And let's represent the transmitted wave in this way. So this is our incident wave, this is our reflected wave, and this is our transmitted wave. So the angle at which wave is incident, let me represent this angle with respect to this normal to the incident. So this incident wave is making an angle of, let's say, theta I with normal to the boundary. And reflected wave is making an angle of, let's say, theta R. And transmitted wave is making an angle of, let's say, theta T. So the subscripts clearly indicate that theta I is the angle of incident wave, theta R is the angle of reflected wave, and theta T is the angle of transmitted wave. So what we are going to do is we are going to represent the incident wave, the reflected wave, and transmitted wave mathematically in the same manner that we used or that we did for normal incidence case. Okay, so this incident wave, uh, it will have associated electric field, let's say EI, and it will have associated magnetic field, which we can represent as HI. Reflected wave will have its own associated reflected is field ER, and it will have its own associated magnetic field that we can represent as HR. And similarly, the transmitted wave electric field will be represented as ET, and associated magnetic field will be represented by HT.
So what we need to do is write down the expressions for EI, HI, ER, HR, ET, and HT. And if you remember, this is how we solve the problem of normal incidence case as well, that I just give you a brief overview. This incident wave was represented by EI and HI, reflected wave ER and HR, and transmitted wave ET and HT. So we need to do the same thing, but of course the problem is now a bit difficult in the sense that we have to consider these angles as well. Okay. Now, with respect to this figure, I'm going to consider the oblique incidence case uh, in two different manners. Okay, the first case and the second case. What we are going to do is this oblique incidence case can have two possibilities. Okay, so the first case that we will consider, and I will solve that case step by step, will be known as parallel polarization case. Parallel polarization case. And the second case that I may not go into too much detail of that, because once you understand the parallel polarization case, then it will be very easy for you to follow the other case by looking at the book. And that case is known as perpendicular polarization case. Perpendicular polarization. Now, what is the difference in these two cases? What is the difference between a parallel polarization case and perpendicular polarization, or how we are dividing the oblique incidence case into these two types? In parallel polarization case, what we consider is that the electric field, which I am representing as E vector, in parallel polarization case, the electric field is parallel, or you can also call it tangent, parallel to the plane of incidence. Plane of incidence. Okay, let me uh, write down the definition of perpendicular polarization case, and then I will talk about what I mean by saying plane of incidence. In perpendicular polarization case, what will happen? The electric field is perpendicular to the plane of incidence. Now, what is plane of incidence? Plane of incidence is that plane which contains the incident wave and the normal to the boundary. Okay, what is plane of incidence? It is the plane which contains the normal to the boundary and the incident wave. Okay, so if you look at this figure, this is our normal and this is our incident wave. So these two vectors are lying in which plane? They are lying in xz plane. So in our case, plane of incidence will mean, plane of incidence means xz plane. Okay, plane of incidence is xz plane. So parallel polarization case, which we will consider in detail, if we are saying that we are dealing with a parallel polarization case, it means electric field will be parallel to xz plane. Okay, when we consider perpendicular polarization case, then we need to take electric field in such a direction such that it is perpendicular to the xz plane. Okay, so
The first case that I'm going to consider, and I will follow that in step by step manner. So in this case, this is direction of propagation. Incident wave is traveling in this direction. Okay. And now we have to make use of knowledge about the direction of propagation, the direction of electric field, and direction of magnetic field. And what we have observed in our previous lecture is that electric field vector, magnetic field vector, and direction of propagation vector, they have a particular configuration in terms of direction. And that configuration is known as TEM mode. So electric field vector, magnetic field vector, and direction of propagation will always be perpendicular to one another. And once we know the direction of any of the two vectors, then we can always find the direction of the third vector. And that can be easily derived by using what is known as right hand rule. Right hand rule. So whenever you uh, rotate your fingers from the direction of electric field vector towards the direction of magnetic field vector, the thumb will be pointing towards the direction of propagation. Okay. So in this case, direction of propagation is this. And because we are considering a parallel polarization case, so in parallel polarization case, electric field has to be parallel. It has to be lying in this XZ plane. It has to lie in the XZ plane. So what we can do to geometrically represent electric field vector is, let me take this situation. So electric field vector is going to be, let's say, let me draw it and then I will talk about it. So let's say this arrow that I have drawn is electric field vector. Okay, so this is the electric field vector. And you can see I have drawn it in such a manner that it is perpendicular to the direction of propagation. Okay. Okay. So as you can see, the vector that I have drawn, which is representing electric field vector, you can see this vector is lying in the exact plane. This vector is lying in the exact plane. So E is parallel to the plane of incidence. So it means this, the figure that I have drawn is now representing this case, parallel polarization case. Okay. Now, what will be the direction of magnetic field if we use the right hand rule? So direction of magnetic field क्या होगी जी? Anyone can answer this question? Can you people hear me, or I am speaking to not a single student in my class? Yes, sir. So I'm asking if this is the direction of propagation, this is the direction of electric field vector. So what will be the direction of magnetic field? Perpendicular to the propagation, sir. So can you specifically mention? We all know this is तो ये तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों आपस में परपेंडिकुलर है. वो तो हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? वाई में सर. वाई डायरेक्शन में होगा. यस, दैट इज आंसर. सो अगर मैं इसको यहाँ पे शो करूँ, यहाँ पे इसको सर्कल से शो कर लेते हैं और इसको हम, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. So ये जो मैं शो कर रहा हूँ, you already know about this thing when we show it like this.
एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं. सो दोनों में क्या फ़र्क होगा? इस तरह हम शो करते हैं, इट मीन्स आउट ऑफ द स्क्रीन है, इसका मतलब है कि इनटू द स्क्रीन. इस वक्त मैंने इसको इस तरह शो किए हुए आउट ऑफ द स्क्रीन, इट मीन्स आउट ऑफ द स्क्रीन का मतलब ये है कि इट विल बी अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. क्योंकि ये एक्स है, ये जेड है, तो पॉजिटिव वाई का मतलब है कि इट इज आउट ऑफ द स्क्रीन. So now, with this figure, I'm going to write down the expressions for incident wave. But before I do that, magnetic जो reflected wave है उसके लिए भी हम define कर लेते हैं कि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह डायरेक्शन में होगा. ठीक है, ये भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. सो अगर मैं ट्रांसमिटेड वेव को देखूं, क्योंकि ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव ओवरऑल इनकी डायरेक्शन एक जैसी है, तो इसके केस में भी मैं इजीली इसको इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा. अ, इसको यहाँ पे मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, सो इट विल बी परपेंडिकुलर. सो ये अगर आपके पास ई टी होगा, ठीक है, क्योंकि ई टी को इलेक्ट्रिक फील्ड को जरूरी है कि वो पैरेलल होना चाहिए. तो यू कैन क्लियरली सी कि जो वेक्टर मैंने बनाया है ई टी, ये एक्स जेड प्लेन में लाइक कर रहा है. ठीक हो गया. और आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है. और उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी. तो इस ये आपके पास एच टी की डायरेक्शन हो जाएगी. ठीक हो गया. रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं हम कि रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. सो अगर मैं रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह रिप्रेजेंट करूं, सो यू कैन सी कि मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है, इट्स परपेंडिकुलर. जस्ट सो दिस इज ई आर. ओके. सो नाउ इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा जी? मैग्नेटिक फील्ड माइनस वाई डायरेक्शन. माइनस वाई डायरेक्शन में. यस. सो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कि इस केस में लेट मी यूज सम अदर कलर. सो ये आपके पास क्रॉस में शो कर रहा हूँ, विच मीन्स कि एच टी जो है इट इज इन टू द स्क्रीन एंड इट मीन्स इट इज along minus y direction. ठीक है. अगेन, एज आई एम टेलिंग यू कि यू कैन ऑलवेज यूज राइट हैंड रूल, और उससे आप बता सकते हैं. तो अगर आप अपनी फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में पॉइंट करें, यूजिंग योर राइट हैंड, यूज योर फोर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड such that they are pointing in this direction. Okay. और मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनटू द स्क्रीन है, तो अगर आप अपने फिंगर्स को क्या करें, उसको बेंड करें सच दैट एज इफ यू आर अप्रोचिंग और यू आर मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर आप थंब की डायरेक्शन देखेंगे, थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होगा. सो योर थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, your fingers along this direction, and when you bend them towards HD, it means कि राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं. इस पे भी आप राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं. यूज योर फिंगर्स अलोंग दिस डायरेक्शन. और जब आप उसको फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपकी जो थंब है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही होगी.
सो यू कैन ऑलवेज रिजॉर्ट टू राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट कि अगर आपको जो तीन वेक्टर्स हैं इनमें से किसी दो की डायरेक्शन पता चल जाए तो फिर तीसरी की आप इजिली राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं. So now let me write down the expressions for incident wave. So what is going to be the expression for EI vector and HI vector? Before I do that, एक और यहाँ पे हम एक assumption apply कर लेते हैं to make our case easier. इस केस में हम assume कर रहे हैं कि ये जो medium वन है ये एक lossless media है, ठीक है, और medium टू जो है ये भी एक lossless media है, ठीक है. और लॉसलेस मीडियम है और इसका जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होगा उसको हम k1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है उसको हम k2 से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अगर हम देखें ई आई वेक्टर आपके सामने. सो ई आई वेक्टर को अगर हम देखें इट इज लाइंग इन द एक्स जेड प्लेन. इट मींस कि इसका एक्स कंपोनेंट भी है और जेड कंपोनेंट भी होगा, ठीक है. अगर आप इस वेक्टर को देखें, इफ यू रिजॉल्व इट इनटू इट्स constituent component, so इस इसका कुछ पोर्शन एक्स डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है और कुछ पोर्शन जो है वो माइनस जेड डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है इफ यू यूज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. ओके, सो इसको आप इस तरह इजिली ज्योमेट्रिकली इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. सो लेट मी यूज दिस कलर. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस वेक्टर को अगर आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट ये है और इसका एक कंपोनेंट ये है. ये जो कंपोनेंट है इसको आप कह सकते हैं कि ये इसका एक्स कंपोनेंट है तो ये ई आई एक्स हो जाएगा. और ये जो कंपोनेंट है जो कि क्योंकि ये प्लस जेड है तो इसका मतलब है कि ये जेड कंपोनेंट है बट ऑफ कोर्स इट इज इन पॉइंटिंग इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन. तो ये आपके पास ई आई जेड कंपोनेंट है, ठीक हो गया. सो एक तो मैं ऑब्वियस जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखूंगा उसमें आपको नजर आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई को जब रिप्रेजेंट करूंगा उसमें यूनिट वेक्टर एक्स भी आएगा और यूनिट वेक्टर वाई आ जाएगा. बट द क्वेश्चन इज कि इसका ई आई एक्स और ई आई जेड हम कैसे फाइंड करेंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल रूल्स. जो आप कह सकते हैं कि ये एंगल जो है थीटा आई है. तो अगर आप इस एंगल को देखेंगे ये भी थीटा ही होगा, ठीक है, थीटा ही होगा. ओके, सो द पॉइंट इज कि मैं इसको लिख लेता हूँ एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इसका जो ये कंपोनेंट है अगर मैं अज्यूम करूं कि ये ई आई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ई नॉट है, ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई नॉट है. सो ई आई एक्स जो है वो बराबर होगा ई नॉट कॉस थीटा और जो ई आई जेड होगा ये इक्वल होगा ई नॉट साइन थीटा, थीटा आई, ठीक है. द पॉइंट इज कि अगर मैं इसको और भी क्लियर करूं, ये अगर आप एंगल फाइंड करेंगे ना, ये अगर आप एंगल देखेंगे ये आपके पास होगा 90 माइनस थीटा ही होगा, 90 माइनस थीटा आई के बराबर आएगा. तो अगर आप इसको रिजॉल्व करें ये आपके पास ई आई ना ई नॉट साइन थीटा ही आ जाएगा और ये नॉट कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ कि एक्स कंपोनेंट
is E नॉट cos थीटा, और क्योंकि z कंपोनेंट जो है माइनस z डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो माइनस z E नॉट साइन थीटा। तो मैथमेटिकली इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर। ओके, अब इसके साथ डायरेक्शन और प्रोपगेशन के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर माइनस j। नाउ जो हमने पहला केस पढ़ा था उसमें बड़ा आसान था कि ये z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी वेव, तो हम सिंपली लिख रहे थे कि e टू पावर माइनस जे के जेड लिख रहे थे, टू सिग्निफाई कि वेव जो है वो प्लस z डायरेक्शन में है या माइनस z डायरेक्शन। ठीक है, अब ऑब्लिक इंसिडेंस केस में अगर आप देखें, जो वेव है वो इस तरफ प्रोपगेट कर रही है, सो यू कैन, ये जो वेक्टर है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को शो कर रहा है। सो यू कैन क्लियरली सी कि ना ये एक्स डायरेक्शन में है ना जेड में है, बल्कि इट इज ट्रेवलिंग इन सच अ मैनर के ये जब वेव ट्रेवल कर रही है, ये वेव जेड डायरेक्शन में भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और एक्स डायरेक्शन में भी वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज, इसको भी हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। सो हम क्या करेंगे कि ये जो इंसिडेंट वेक्टर है इसको मैं अगर रिजॉल्व करना चाहूँ, सो इसका एक कंपोनेंट ये होगा, ये वाला जो कि इस तरह पॉइंट आउट कर रहा होगा, और इसका एक कंपोनेंट ये होगा इस डायरेक्शन। सो ये अगर वेक्टर है, इसको जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट ये आ गया, एक कंपोनेंट ये आ गया। सो इस कंपोनेंट को अगर आप देखें, ये आपके पास एंगल बना रहा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ये जो है इसके साथ आ जाएगा कॉस, और इसके साथ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर आप इसको रिलेट कर लें। सो मैं क्या लिख रहा हूँ कि e टू पावर माइनस जे के वन, क्योंकि हम मीडियम वन के अंदर है, और मैं इसके साथ लिख रहा हूँ के वन को मैं कॉन्स्ट कॉमन ले लेता हूँ, एंड देन आई एम राइटिंग एक्स साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा। सो यू कैन सी एक्स के साथ साइन थीटा है और जेड के साथ कॉस थीटा है। सो ये अगर आप देखें ये जेड डायरेक्शन में है, इसके साथ आप देखें कि मैंने एक क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, और ये जो है इसके साथ मैंने साइन थीटा लिखा हुआ है बेस्ड ऑन दिस ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन ऑफ दिस वेक्टर, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड जो है इंसिडेंट वेव की, जिस तरह मैंने पॉइंट आउट की थी, इट इज अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ओके, सो हम सिंपली लिखेंगे वाई, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वी ऑलरेडी नो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट हो और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना हो, ऑल वी नीड टू डू इज डिवाइडेड बाय द इंट्रिंसिक इंपेडेंस ऑफ द मीडियम, जो कि ईटा वन है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के लिए हम वही वेक्टर लिखेंगे ई पावर माइनस जे के वन एक्स साइन थीटा आई प्लस जेड cos theta. This is how we can mathematically represent incident wave electric field and incident wave magnetic field. Okay. Now what we are going to do is कि अब हम इसी तरीके से reflected wave के लिए भी expressions लिखेंगे, जिनको हमने represent किया हुआ है with ER और HRs. Now this is the figure that I'm using to write down all of the expressions. So इस केस में भी अगर आप देखें, ये जो ER है इसको जब आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, सो इसका
एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। ठीक हो गया। अब इंसिडेंट जो वेव है उसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है। सो ये जो रिफ्लेक्टेड ई आर है, ये जिसको मैंने इस तरह शो किया हुआ है, इसके मैग्नीट्यूड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट मल्टीप्लाइड विथ ई नॉट। ठीक है, क्योंकि ये वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है और डिपेंड करता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट कितना है, तो अकॉर्डिंगली इसका मैग्नीट्यूड जो है वो गैमा टाइम्स ई नॉट हो जाएगा। सो ये आपके पास गैमा नॉम ई नॉट। अगेन इसको भी आप यूजिंग द रूल्स ऑफ ज्योमेट्री आप इजीली ये एंगल फाइंड कर सकते हैं कि ये एंगल किसके बराबर है। तो आपके पास एक्स कंपोनेंट का भी बिहेवियर आ जाएगा और वाई का भी आ जाएगा। अगेन इसके साथ आपके पास ई, इसका मतलब है कि ई आर एक्स आपने फाइंड करना है और दूसरा आपने ई आर जेड फाइंड करना है। ठीक है, सो ई आर एक्स के साथ जो है आपके पास अगेन उसी तरीके से कॉस आ जाएगा, ये कोसाइन फंक्शन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये किस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल आप फाइंड करेंगे, ये थीटा आर के बराबर आएगा। ठीक है, ये थीटा आर है। सो ये वेक्टर थीटा आर एंगल बना रहा है, तो ये इसको अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ई आर एक्स आ जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा गेमा ई नॉट कॉस थीटा आर के बराबर आएगा। और जो ई आर जेड है वो बराबर आ जाएगा गेमा ई नॉट साइन थीटा आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस एंगल के हिसाब से इसको देख रहे हैं जो कि थीटा आर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सो थीटा आई इज इंसिडेंट एंगल, थीटा आर इज रिफ्लेक्टेड एंगल और थीटा टी जो है हमारे पास ट्रांसमिटेड एंगल। ठीक है, सो ई आर के लिए हम क्या लिखेंगे, ई आर विल बी इक्वल टू एक्स, so it has x component with magnitude gamma e naught cos theta, एंड अगेन डायरेक्शन को अगर आप देखें इन केस ऑफ थीटा आई जो है ये इसका जो z कंपोनेंट था वो नेगेटिव z था, लेकिन इसका जो z कंपोनेंट है वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस z gamma e नॉट साइन थीटा आर। अब रिफ्लेक्टेड वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, अगर आप रिफ्लेक्टेड वेव को देखें, ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव इस तरह ट्रेवल कर रही है, वेव इस तरह ट्रेवल कर रही है। अब वेव को हम जब रिजॉल्व करेंगे तो अगर हम देखें वेव ट्रेवल करते हुए नेगेटिव जेड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज हम इस केस में भी इसको रिजॉल्व कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स में। तो अगर आप देखें इस वेक्टर को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा, हाँ, सो एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा विच इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो इस वेक्टर को मैंने रिजॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल लिखेंगे ई पावर माइनस जे के वन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स, सॉरी, एक्स साइन थीटा आर लिखेंगे, और क्योंकि नेगेटिव जेड है तो माइनस जेड कॉस थीटा आर। मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखना बड़ा आसान है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पहले से कह चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द स्क्रीन व्हिच मींस इट विल बी इन द पॉइंटिंग इन द माइनस वाई डायरेक्शन। सो मैं क्या लिखूंगा, माइनस वाई, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट विल मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड इंसिडेंट वेव का ई नॉट बाई ईटा नॉट है, इसके साथ हम गैमा मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे ई पावर माइनस जे के वन एक्स साइन थीटा आर
माइनस जेड कॉस थीटा। सो रिफ्लेक्टेड वेव को भी हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। And finally, we need to represent the expression. So we need to write down the expression for transmitted wave. Okay. So transmitted wave के लिए हम लिखेंगे. Now, once you correctly write down the expressions for the incident wave, it is very easy to write down the expression for transmitted wave without doing the vector geometrical. आपको करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इंसिडेंट वेव में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वही ट्रांसमिटेड वेव की भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, इंसिडेंट वेव ट्रेवल करते हुए पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और अगर आप इसको ट्रांसमिटेड वेव को देखें जो कि ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव इस तरह ट्रेवल कर रही है, सो इट इज आल्सो ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव जेड एंड पॉजिटिव एक्स। बट व्हाट वी नीड टू डू इज फॉर रिप्रेजेंटिंग ट्रांसमिटेड वेव हमने इस एंगल को यूज करना है, क्योंकि एवरीथिंग हैज टू बी विद रिस्पेक्ट टू थीटा टी। सो ऑल यू नीड टू डू इज ये जो इंसिडेंट वेव की एक्सप्रेशन है आपके पास ई आई, एक तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड क्यों चेंज होगा? क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट है, तो रिफ्लेक्टेड का गेमा टाइम्स ई नॉट हो गया। तो इसी तरीके से जो ई टी है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इट मस्ट बी इक्वल टू सॉरी कैपिटल टी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इनटू ई नॉट। तो मैग्नीट्यूड इसका चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ई नॉट नजर आ रहा है इसकी जगह इसके साथ मैं टी भी मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और जहाँ पे थीटा आई है वहां पे मैं थीटा टी लिख दूंगा। और यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? ई पावर माइनस जे के वन की बजाय मैं के टू लिखूंगा, क्योंकि जो ट्रांसमिटेड वेव है वो मीडियम टू के अंदर ट्रेवल कर रही है, जिसका जो कि डिफरेंट मीडियम है, जिसका अपना प्रोपगेशन कांस्टेंट के टू है। तो यहाँ पे मैं के टू लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एक्स साइन थीटा टी लिखूंगा प्लस जेड कॉस थीटा टी लिखूंगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप इंसिडेंट वेव की एक्सप्रेशन करेक्टली लिख दें तो फिर ई टी की एक्सप्रेशन लिखना मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं क्या लिखूंगा ई टी को? ई टी को अगर आप चेक करें मैं क्या लिखूंगा? एक्स टी टाइम्स ई नॉट कॉस थीटा टी माइनस जेड टी ई नॉट साइन थीटा टी। और ई पावर माइनस जे के टू लिखूंगा मैं, और लिखूंगा एक्स साइन थीटा टी प्लस जेड कॉस थीटा टी। सो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस मैंने इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दी है। ऑफ कोर्स इफ समवन इज इंटरेस्टेड आप यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि ई टी को आप अगेन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो अगेन आप इसको अगर करना चाहें तो विदाउट, अगर आप इंसिडेंट वेव की एक्सप्रेशन यूज किए बगैर इसको डिराइव करना चाहते हैं तो वही काम आपको करना पड़ेगा। आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा कि इसका एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये, एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट कि ये एंगल किसके बराबर है। वंस यू फाइंड दैट एंगल यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि ये किसके बराबर होगा और ये। ठीक हो गया? और इस तरीके से ये जो वेक्टर है इसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव जेड है और ये पॉजिटिव एक्स है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव जेड। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। व्हाट आई एम टेलिंग यू के इंसिडेंट वेव से भी आप कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से एच टी की एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे? एच टी, सो इट विल बी पॉइंटिंग इन द वाई डायरेक्शन एंड इट विल बी टी मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट डिवाइडेड बाय, इसको हम अब ईटा टू पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे? ई पावर माइनस जे के टू एक्स साइन टी प्लस जेड कॉस टी। सो यू कैन क्लियरली सी कि मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा और इसमें अप्रोप्रिएट चेंजेस की। एक तो मैग्नीट्यूड में मैंने चेंजेस की, यहाँ पे एक टी आ गया, और दूसरा यहाँ पे के वन की जगह के टू आ गया, और इंसिडेंट एंगल के बजाय अब मैं अब इसको इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेड एंगल लिख रहा हूँ। ठीक है, so now what we have done is we have completed the first step, and the first step was कि ये जो oblique incidence case था जिसमें हम parallel polarization case को डिस्कस कर रहे हैं,
हमने इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव की जो फील्ड्स एक्सप्रेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने लिख दी है। अब हमने जिस तरह नॉर्मल इंसिडेंस केस में किया था कि हमने रिलेट किया था कि ये जो बाउंड्री के लेफ्ट साइड पे जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव है और जो बाउंड्री के राइट साइड पे ट्रांसमिटेड वेव है, इनकी जो फील्ड्स हैं इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, उसके लिए हमने क्या किया था, z इक्वल टू 0 पे हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी और उन बाउंड्री कंडीशन से फिर हमने रिलेशनशिप फाइंड की थी। इस वक्त हमारे पास अननोन कितने हैं, अगर अननोन्स को अगर हम देखें, हमारे पास एक अननोन तो ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, गैमा जो आपको नजर आ रहा है, ये हमने फाइंड करना है कि ये गैमा क्या होगा। दूसरा हमारे पास ये टी है जो कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है। एट द सेम टाइम अब हमारे पास दो अननोन्स और भी आ चुके हैं जो कि थीटा आर हैं और थीटा टी हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हमें पता चले कि जो इंसिडेंट वेव है ये थीटा आई एंगल पे इंसिडेंट हुई है, लेट्स से 30 डिग्री पे, सो हम थीटा आर की क्या वैल्यू होगी या थीटा टी की क्या वैल्यू होगी, ये भी अभी हमें अननोन फाइंड करने हैं। ठीक है। सो राइट नाउ वी हैव अननोन्स। अगर मैं देखूं अननोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त हमारे पास अननोन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, गैमा, टी, theta r and theta t. So we have four unknowns. ठीक है। अब जो बाउंड्री कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है वो हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस जो हमने पिछले नॉर्मल इंसिडेंस केस में भी हमने यूज की थी, एंड दैट इज के टेंजेंट कंपोनेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का और टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो दोनों क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। सो व्हाट वी आर सेइंग इज के अगर हम n क्रॉस E1 लें, ये बराबर होगा n क्रॉस E2 के बराबर होगा। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है कि n क्रॉस H1 इक्वल होगा n क्रॉस H2 के। और हमारी बाउंड्री कहाँ पे है, एट z इक्वल टू 0 पे। E1 और E2 और H1 H2 में जो नोटेशन यूज कर रहा हूँ वो मैं जनरलाइज यूज कर रहा हूँ। सो मीडियम वन जो कि पूरा मीडियम है, इस मीडियम में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको मैं E1 कह रहा हूँ, और इस रीजन में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी इसको मैं H1 कह रहा हूँ। और मीडियम टू में जो इस साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं E2 कह रहा हूँ और H2 कह रहा हूँ। बट वी नो कि इन मीडियम वन E1 हैज two components. It has EI as well as ER, क्योंकि इस रीजन में इंसिडेंट वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है, तो हमें इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंसिडर करना है और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंसिडर करना है। तो जो फिगर या जो सिचुएशन हम डील कर रहे हैं उसके हिसाब से इस इक्वेशन का क्या मतलब होगा, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि EI which is incident electric field plus ER और इसका टेंजेंट कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके दो कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट भी है, जेड भी है, एक्स भी है, जेड भी है, एक्स भी है, जेड भी है। जो बाउंड्री कंडीशन की हम बात कर रहे हैं एन क्रॉस का मतलब ये है कि हमने E1 का टेंजेंट कंपोनेंट देखना। तो हमारे पास जो ये बाउंड्री है जो आपको इस वक्त नजर आ रही है, ये बाउंड्री है जो कि एक्स एक्सिस को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है। और अगर आप जेड को देखें, जेड जो है इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर है। तो व्हेन आई एम सेइंग टेंजेंट कंपोनेंट, तो टेंजेंट कंपोनेंट का मतलब है कि आई हैव टू कंसीडर ओनली एक्स कंपोनेंट बिकॉज ओनली एक्स कंपोनेंट इज टेंजेंट टू द बाउंड्री। जेड कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, एक्स कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका मतलब है कि क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ई आई एक्स प्लस ई आर एक्स मस्ट बी इक्वल टू ई टी एक्स।
और क्योंकि हम बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ये z इक्वल टू जीरो पे यू कैन क्लियरली सी कि मैंने इस कंडीशन को फर्दर आपके सामने कर दिया कि हमारे केस में E1 के दो कंपोनेंट्स हैं, x भी है z भी है, लेकिन क्योंकि n क्रॉस e का मतलब है कि ओनली x कंपोनेंट विच इज टेंजेंट टू द बाउंड्री वो आपके पास आएगा, सो ई आई एक्स प्लस ई आर एक्स मस्ट बी इक्वल टू एच टी एक्स। सो इसको हम देखेंगे और फिर इस बाउंड्री कंडीशन का क्या मतलब होगा। एन क्रॉस एच वन का मतलब है कि एच वन का टेंजेंट कंपोनेंट और एच टू का क्रॉस टेंजेंट कंपोनेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखें, मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ वाई कंपोनेंट, वी ओनली हैव वाई कंपोनेंट। और अगर हम फिगर के हिसाब से देखें तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो वो बाउंड्री के टेंजेंट ही है, ये हमारी बाउंड्री है। तो अगर हम वाई को देखें जो कि आउट ऑफ द स्क्रीन है तो ये इसके बिल्कुल टेंजेंट आ रही होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि इस केस में हमें क्या करना है, एच आई वाई प्लस एच आर वाई must be equal to एच डी वाई at z equal to 0. So these are two boundary conditions जो हम अपनी equations जो हमने लिखी हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो ई आई एक्स प्लस एच आर एक्स, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई आई एक्स का मतलब है कि वी नीड टू कंसिडर ओनली ई नॉट कॉस थीटाई। सो ई नॉट कॉस थीटाई, और जब आप इसमें z को जीरो पुट करना है तो जब आप z को जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यू विल ओनली एंड अप विद दिस। सो ई आई एक्स एट z इक्वल टू जीरो किसके बराबर होगा, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ई आई एक्स की जगह मैं अब क्या लिखूंगा, ई आई एक्स की जगह मैं लिखूंगा ई नॉट कॉस थीटाई इंटू ई पावर माइनस जे के वन एक्स साइन थीटाई, ठीक है। सो इसको इक्वेशन को मैं इक्वेशन ए कह देता हूँ, इसको इक्वेशन बी कह देता हूँ, ठीक है। सो इक्वेशन ए से मेरे पास क्या आ गया, ई नॉट कॉस थीटाई ई पावर माइनस जे के वन एक्स साइन थीटा। इन अ सिमिलर मैनर एच आर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी ई आर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, गेमा ई नॉट कॉस थीटा इंटू ई पावर माइनस जे के वन एक्स साइन थीटा, क्योंकि ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी और क्योंकि जेड कंपोनेंट तो हम ले ही नहीं रहे तो ये भी कैंसिल आउट होगी, वी डोंट हैव दिस थिंग। सो वी विल से प्लस gamma e naught cos theta e power minus j k1 x sin theta r equal to etx सो etx किसके बराबर होगा, etx को अगर आप देखें इट विल बी t e नॉट cos theta t इंटू ई पावर माइनस जे के टू एक्स साइन थीटा टी आ जाएगा, ठीक हो। सो कैपिटल टी ई नॉट cos theta t e power minus j k2 x sin theta t. So by applying the first boundary condition we end up with this अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम कुछ चेंजेस करें तो ये ई नॉट और ई नॉट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल एंड अप विद दिस। uh, let's apply the second boundary condition. So equation b से मेरे पास क्या आएगा, equation b से क्या आएगा, I have to consider h I y plus h r y must be equal to h t y. So मैं सिर्फ h y I का अगर अब देखूं मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, h I y की जगह मैं क्या लिखूंगा, e नॉट डिवाइडेड बाई ईटा वन e पावर माइनस j k वन x sin थीटा i, क्योंकि z जीरो है तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन बी से मेरे पास क्या आएगा, e naught divided by eta 1 and e power minus j k1
एक्स साइन थीटा प्लस एच आर वाई, और क्योंकि एच आर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में था तो माइनस साइन आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा गैमा ई नॉट डिवाइडेड बाई ईटा वन e power minus j k1 sine theta r equal to h t y, which means capital T multiplied by e naught divided by eta 2 e power minus j k 2 x sine theta t. सो जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन मैंने अप्लाई की, दिस वन, इससे ये एक रिलेशनशिप हमारे पास आ गई, और इसमें भी हम अगेन ई नॉट को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेते हैं, सो अल्टीमेटली वी गेट दिस रिजल्ट। ओके, इस इक्वेशन को मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन ऑन द fields on either side of the boundary, we end up with this relationship. Now there is one uh, important point that we need to consider, and that is, अगर आप इन बाउंड्री कंडीशंस को देखें, बाउंड्री कंडीशंस में मेरे पास x आ रहा है, अगर आप देखें हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है x x x x x एंड x, विच मीन्स के इट अपीयर एज इफ के हमारे पास जो ये x है, अगर आप बाउंड्री को देखें, ये हमारे पास x एक्सिस है। इट मीन्स कि ऐसे ऐसे एज यू मूव इन दिस डायरेक्शन तो एक्सचेंज हो रहा है। सो इसका मतलब है कि हर जगह पे बाउंड्री कंडीशंस को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। अगर एक्सचेंज होगा तो बाउंड्री कंडीशंस भी चेंज होगी, लेकिन बाउंड्री कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बाउंड्री की एक जगह पे एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो हर जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग इज, इन एक्सप्रेशन में व्हाट आई वांट इज कि अगर x की वैल्यू चेंज हो, x की वैल्यू अगर चेंज हो, तो लेट्स से मैं कोई भी x की वैल्यू लेता हूं, तो वो x वैल्यू यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करूंगा, बट आई वांट कि इस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो एंड रिजल्ट आएगा, दैट इज k1 x sin थीटा i, k1 x sin थीटा r और k2 x sin थीटा 2, इसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर x की वैल्यू चेंज हो फिर भी ये हमेशा एक रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा? अगर तो k1 sin थीटा i इक्वल हो k1 sin थीटा r के, और ये बराबर हो k2 sin थीटा t। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो चाहे आप x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, इससे रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, देन वी कैन अप्लाई दिस कंडीशन। So what I'm saying is x variation must be same on both sides of equation, which means k1 sin theta I must be equal to k1 sin theta r must be equal to k2 sin theta t. नाउ ये जो हमने कंडीशन निकाल ली है, इसको अगर हम फर्दर इसको एक्सप्लोर करें, सो पहले इसको कंपैरिजन करते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करें कि k1 sin थीटा
आई मस्ट बी इक्वल टू के वन साइन थीटा आर। इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा कि साइन थीटा आई मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा आर, which means theta I must be equal to theta r. सो एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट आ गया, जो यहाँ पे मैंने अननोन पैरामीटर की बात की थी कि थीटा आर किसके बराबर होगा। अब हमारे पास है कि रिजल्ट क्या आ गया है कि थीटा आर जो है थीटा आई के बराबर होगा। वट एवर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट विल बी दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको अगेन यू माइट हैव ऑलरेडी यूज दैट, जिसको आप स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप कहते हैं। ठीक है, इन योर बेसिक फिजिक्स कोर्स में आप पढ़ चुके होंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी वही लॉ एप्लीकेबल है कि द एंगल एट विच wave is incident, it will be reflected with the same angle. Okay, और अगर हम इस इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें, so let's compare the first term with the third one. Okay, so इसके रिजल्ट क्या आ गया कि k1 sin theta I is equal to k2 sin theta t. और ये जो आपके पास रिलेशनशिप है, इट इज बेसिकली अगेन अनदर स्नेल्स लॉ। दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो नाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस कंडीशन कि थीटा आई थीटा आर के बराबर होना चाहिए और के वन साइन थीटा टू के वन साइन थीटा आई के टू साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप इसको देखें स्टेप बाय स्टेप, अगर आप देखें व्हाट यू नीड टू डू इज एक तो आपको यहाँ पे जो थीटा आर है, इस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन वन की बात कर रहा हूँ, हम इसमें क्या चेंज करेंगे, ये टर्म तो ये टर्म फर्स्ट टर्म तो इंसिडेंट वेव के लिए इट विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आर की जगह हम थीटा आई लिख देंगे, सो कॉस थीटा आई आ जाएगा। और ई पावर माइनस जे के वन एक्स साइन थीटा आर की जगह भी हम थीटा आई लिख देंगे, तो ये भी ई पावर माइनस जे के वन एक्स साइन थीटा टी हो गया, ये भी ई पावर माइनस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे जो के टू साइन थीटा टी है, के टू इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, के वन साइन थीटा आई। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सब एक जैसे हो गए, तो इनको आप कैंसिल आउट कर देंगे, इनको आप कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ। सो व्हाट आई विल से इज कि ये जो दो डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस आ गई, इसको आप इस फॉर्म में भी ट्रीट कर सकते हैं कि हमारे वी हैव फोर अननोन्स, and in order to find four unknowns we must have four equations. Okay, when we apply boundary conditions we have only two boundary conditions जो हम apply कर सकते हैं। as a result हमारे पास दो equations हैं जिनको हम use करके four unknowns को find करना चाह रहे थे, which was not possible. तो what happened is कि इन दो बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करने के दौरान हमारे पास दो और कंडीशंस भी आ गई, तो ये एक इक्वेशन आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। सो अल्टीमेटली अब हमारे पास फोर इक्वेशंस हैं और हमारे पास फोर अननोन्स। तो नाउ आवर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई, ये जो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, लेट मी सी इफ इट इज पॉसिबल कि मैं इसको, सो एक तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गई और ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गई। ठीक हो गया, और दूसरा चेंज क्या आएगा यहाँ पे थीटा आई थीटा आर की जगह थीटा आई आ जाएगा। ठीक हो गया, सो नाउ हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, और इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन में भी ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, और ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गई। So now you have these two equations. Okay. So now you can, all you need to do is कि अब आपके पास इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व these for gamma and t.
तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने इस तरह रीअरेंज करना है कि पहले आपने इसकी गैमा की वैल्यू निकालनी है और फिर टी की वैल्यू निकालनी है। तो ऑलरेडी आपके पास दोनों इक्वेशंस में गैमा और टी है, तो आप दोनों इक्वेशंस को एक रीअरेंज करके पहले आप गैमा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आप टी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन अज्यूमिंग कि यू आर एबल टू डू दिस। सो गैमा की जो एक्सप्रेशन आएगी मैं वो लिख रहा हूँ, ईटा टू, जस्ट 1 मिनट। Okay, so gamma will be equal to eta 2 cos theta t minus eta 1 cos theta I divided by eta 2 cos theta t plus eta 1 cos theta I। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपके पास आएगा 2 eta 2 cos theta I divided by eta 2 cos theta t plus eta 1 cos theta I। So this is what we were looking for, कि अगर ऑब्लिक इंसिडेंस केस हो, एंड लेट मी राइट इट डाउन, ये हमने कौन से केस के लिए किया है, दिस इज फॉर अ पैरेलल पोलराइजेशन केस। So now you can see that reflection coefficient, not only it depends on the medium intrinsic impedance, it's also depend upon कि आपके पास angle of incidence क्या था और accordingly angle of transmission क्या। ठीक है, now if we assume कि हमारे पास अगर थीटा आई, इफ आई गो बैक, हमने इस वक्त अज्यूम किया हुआ है कि वेव इज इंसिडेंट एट दिस एंगल, ओके, थीटा आई। अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस केस बन जाए, नॉर्मल इंसिडेंस केस, इसका मतलब है कि वेव जो है इस तरह इंसिडेंट होगी। ठीक है, वेव विल बी इंसिडेंट लाइक दिस। इस केस में एंगल थीटा आई कितना हो जाएगा, एंगल थीटा आई विल बी इक्वल टू 0। ठीक हो गया, सो थीटा आई भी 0 हो जाएगा, थीटा आर भी 0 हो जाएगा और थीटा टी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ये नॉर्मल इंसिडेंस केस बन गया। सो इस इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा कि थीटा आई जो है वो 0 के बराबर हो गया, सो कॉज ऑफ 0 इज 1, थीटा 1 रह जाएगा, थीटा टी भी 0 हो जाएगा तो कॉज ऑफ 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इससे क्या रिजल्ट आएगा अगर हम इसको देखें, सो आई विल से फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, $90। सो इसका
रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट से क्या रिजल्ट पाएगा, ईटा टू माइनस ईटा वन डिवाइडेड बाय ईटा टू प्लस ईटा वन, और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, टू ईटा टू डिवाइडेड बाय ईटा टू प्लस ईटा वन। इफ यू लुक एट देम, ये एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है जो ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, ऑलरेडी डिराइव्ड। सो दिस प्रूव्स माय प्रीवियस स्टेटमेंट जो मैंने आपको कहा था कि ये जो ऑब्लिक इंसिडेंस केस है ये एक जनरल केस है, और जो नॉर्मल इंसिडेंस केस है वो स्पेशल केस है। सो यू कैन ऑलवेज डिराइव स्पेशल केस फ्रॉम जनरल केस। तो ये जो जनरल केस था, इसको जब मैंने अज्यूम किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो के बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि वेव जो है अब इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, तो इससे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की एक्सप्रेशन जो आपके पास आ जाएगी वो वही एक्सप्रेशन है जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट द अदर केस जो मैंने मेंशन किया था, जिसको मैंने परपेंडिकुलर पोलराइजेशन केस कहा था, कि सिचुएशन यही हो कि वेव जो है ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही हो, ऑब्लिक इंसिडेंट हो रही हो, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका ओरिएंटेशन इस तरह हो कि वो परपेंडिकुलर हो टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स जेड प्लेन में लाई कर जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस होगा। सो एज आई मेंशन कि मैं इसको डिटेल में नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस आएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे रेलिवेंट टू दिस डिस्कशन, वो मैं कर लेता हूँ, एंड देन आई विल briefly talk about perpendicular polarization case. There is something called Brewster angle. So let me talk about that thing. So what is Brewster angle? Let me define it. It is a special angle of incidence for which reflection coefficient is equal to zero. और इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं with this notation theta with a subscript b. So Brewster angle is that special angle of incidence for which reflection coefficient will be equal to zero, which means कि एक ऐसा एंगल है, अगर उस एंगल पे वेव इंसिडेंट हो बाउंड्री के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन जीरो होगी। इसका मतलब है कि सारी की सारी वेव क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। सो अगर हम फाइंड करेंगे कि जो हमने पैरेलल पोलराइजेशन केस डिराइव किया है, इसमें अगर आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को देखें, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एक्सप्रेशन हमारे सामने है। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि रिफ्लेक्शन अगर जीरो हो जाए, सो मैं अगर मैं इस कंडीशन को देखूं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर जीरो होगा, इसका मतलब है कि इसका न्यूमरेटर जीरो के बराबर होगा, विच मीन्स के ईटा टू कॉस थीटा टी माइनस ईटा वन कॉस थीटा आई जो है ये जीरो के बराबर होना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट कि इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो हमारे पास फॉर पैरेलल पैरेलल पोलराइजेशन केस की मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट टू बी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा कि ईटा टू कॉस थीटा टी माइनस ईटा वन कॉस थीटा ई जीरो के बराबर होगा। ईटा टू कॉस थीटा टी माइनस ईटा वन
cos थीटा 0 के बराबर होना चाहिए. So it means कि eta 2 cos थीटा t बराबर होगा eta 1 cos थीटा i. So cos theta t will be equal to eta 1 divided by eta 2 cos theta i. Okay. Now we also need to represent कि जो मैं eta 1 और eta 2 लिख रहा हूँ इसको भी थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये किसके बराबर होंगे. इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन सॉरी म्यू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 अंडर द रूट और eta 2 जो होगा वो होगा म्यू 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2 अंडर द रूट. As well as we can also make use of this result कि sorry this one cos theta t. Cos theta t can also be represented as 1 minus sine square theta t under the root. Again, I'm using the commonly used relationship that sine square theta plus cos square theta is equal to 1. So cos square theta is equal to 1 minus sine square theta or cos theta is 1 minus. इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं. ठीक हो गया. So I am using this result कि cos theta t की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 minus sine square theta t under the root. Okay. And we also derive this important result जिसको मैंने कहा था जी this one. Snell's law of reflection कि k1 sin theta t is equal to k2 sin theta t. ठीक है. इस एक्सप्रेशन से अगर मैं sin theta t लिखना चाहूँ so sin theta t must be equal to k1 divided by k2 into sin theta I. Okay. So according to Snell's law of refraction हमने क्या फाइंड किया था कि k1 sin theta I will always be equal to k2 sin theta t. इससे मैं sin theta
t निकाल रहा हूँ, इट विल बी इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाय k2 into sin theta I. So in place of sin theta t, I'm writing k1 divided by k2 into, of course, square लेना पड़ेगा इसका में, sin theta I square. So this is cos theta t. Now, one thing that I missed over here is मैंने डिफाइन किया है कि जब ये सिचुएशन आपके पास होगी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो हो जाए किसी खास स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस के, उसको हम थीटा बी कहेंगे। इसका मतलब है कि जब न्यूमरेटर जीरो के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैं थीटा आई यूज कर रहा हूँ इसकी जगह मुझे थीटा बी यूज करना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। तो मैं व्हाट आई एम मिसिंग ओवर हियर इज कि मैं थीटा आई को अब क्या कहूंगा, थीटा बी कहूंगा। ठीक हो गया? क्योंकि जब थीटा आई थीटा बी के बराबर होगा तब हमारे पास ये सिचुएशन आएगी। ठीक हो गया? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेता हूँ, इसको अब हम थीटा बी कहेंगे, इसको हम थीटा बी कहेंगे। और यहाँ पे भी यहाँ पे जो मेरे पास थीटा आई था इसको मैं थीटा बी कहूंगा। तो यहाँ पे आपके पास ये थीटा बी है। ओके, यहाँ पे जो के वन है इसको भी आप देख लें, के वन किसके बराबर होगा, ओमेगा म्यू वन एप्सिलॉन नॉट, और के टू किसकी जगह हम लिख रहे हैं, ओमेगा म्यू टू एप्सिलॉन टू। ओके, नाउ ये जो मीडियम की परमिबिलिटी है, सो अनलेस कि हमारा मीडियम अगर मैग्नेटिक है तो फिर तो हम इसकी एक्चुअल परमिबिलिटी यूज कर रहे होंगे, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मीडियम हमारा होगा वो नॉन मैग्नेटिक होगा। सो फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडिया हम क्या करेंगे कि यहाँ पे म्यू नॉट के बजाय हम यूज करेंगे कि इसकी परमिबिलिटी म्यू नॉट, तो ये दोनों म्यू नॉट के बराबर। ठीक है, whatever is the permeability of free space, the same permeability जो है हमारे मीडियम की। ठीक हो गया? नाउ हमारा गोल क्या है, जस्ट टू, हमने क्या फाइंड करना है, ब्रूस्टर एंगल फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड आउट कि अगर हमने फाइंड करना हो कि व्हाट इज द एंगल, वो कौन सा एंगल है जिस पे हमें ये बिहेवियर मिल सकता है। ठीक है ना? सो वी नीड टू, वी आर एक्चुअली सॉल्विंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर दिस एंगल। ठीक है, तो इस वक्त मैं यहाँ तक इसको मैंने किया हुआ था। यस, सो वी यूज के न्यूमरेटर जीरो के बराबर होगा, उसके बेस पे यहाँ तक रिजल्ट आ गया था। सो यहाँ पे मैंने यस cos थीटा टी, मैंने क्या किया कि लेफ्ट साइड पे जो cos थीटा टी है उसको वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी की फॉर्म में लिखा हुआ था। सो मेरे पास लेफ्ट साइड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि ये जो रिजल्ट है ये हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, सो cos थीटा टी को मैं इसकी जगह रिप्लेस करूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो राइट साइड में मेरे पास cos थीटा भी है, सॉरी ईटा वन, अब मैं इसको लेट से लिख लेता हूँ कि इस वक्त क्या रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, वन माइनस के वन स्क्वायर के टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी अंडर द रूट इक्वल टू, सो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया इक्वल टू, इसकी जगह हम लिखेंगे ईटा वन
ईटा 2, और हमारे पास है कॉस थीटा भी, कॉस थीटा भी। नाउ कॉस थीटा बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बट बिफोर डूइंग दैट मैं इसको भी लिख लेता हूँ, क्योंकि ईटा 1 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ईटा 1 को मैंने ये डिफाइन किया हुआ है कि ईटा 1 और ईटा 2 की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमारा मीडियम जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, तो ईटा 1 की जगह मैं लिखूंगा, सॉरी, म्यू 1 की जगह मैं लिखूंगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन अंडर रूट, और इसकी जगह हम लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन अंडर रूट। ठीक है, तो ये रिजल्ट मैं अब यहाँ पे यूज करूंगा। तो मेक श्योर कि इसको आप अंडरस्टैंड कर लें कि मैं अब क्या कर रहा हूँ कि ईटा 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन अंडर द रूट। ईटा 2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2 अंडर द रूट। और कॉस थीटा बी की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी। सो यहाँ पे आप देखें कि ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा, मैं इससे इसको फोकस कर रहा हूँ कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से आपके पास क्या आएगा कि ईटा 2 डिवाइडेड बाय ईटा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेना है। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, 1 माइनस k1 स्क्वायर बाय k2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी। राइट साइड पे क्या आएगा, ईटा 2 डिवाइडेड बाय ईटा 1 हो जाएगा, इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी हो जाएगा। ठीक हो गया। एंड जस्ट टू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो ये k1 और k2 है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि k1 की जगह आप ये लिखेंगे। सो मैं अगर इसको लिखूँ, k1 स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, इट विल बी ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन 1। ये आप k1 स्क्वायर की जगह लिखेंगे, और k2 स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन 2 आ जाएगा। सो ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ कि क्या रिजल्ट आ गया, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बी आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे है ईटा 1 ईटा 2 divided by eta 1 1 minus sine square theta b। सो नाउ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक ऐसी एक्सप्रेशन तक लेके आ चुका हूं कि अब आप इजीली इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर सकते हैं फॉर, पहले आप इसे साइन स्क्वायर थीटा बी के लिए कर लेंगे। सो लेट मी, आप आपने क्या करना है, रीअरेंज दिस फॉर साइन थीटा बी। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बी है, लेकिन फिर आप जो भी आप इस तरह कर लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बी आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, जो मैं लिख रहा हूँ कि ये आना चाहिए। ठीक है, ये आपने खुद करना है। सो 1 प्लस एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2, ये आएगा। और फिर इसका जब आप अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 अंडर द रूट। So with the help of this, you can find out कि पैरेलल पोलराइजेशन केस में एंगल ऑफ ब्रूस्टर एंगल क्या होगा। तो यू कैन सी के ब्रूस्टर एंगल जो है वो डिपेंड करता है कि मीडियम 1 की परमिटिविटी कितनी है और मीडियम 2 की परमिटिविटी कितनी है। So once you have this information, medium 1 permittivity, medium 2 permittivity, you substitute over here
इससे साइन थीटा भी आ जाएगा, एंड देन यू कैन टेक द साइन इनवर्स, और आपके पास वो एंगल आ जाएगा जिस एंगल पे आपके पास कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी. सो इट मीन्स कि अगर यहाँ से, अगर ये वो एंगल है जहाँ पे जब ब्रूस्टर एंगल आपके पास आ गया, तो आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन नहीं होगी. देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, ऑल ऑफ द वेव विल बी ट्रांसमिटेड, जो हमने डिफाइन किया है ब्रूस्टर एंगल को बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया. ठीक है. Now, I think today the meeting is not ending. I think due to some reason, Zoom has extended something or like that. कि normally 40 minute के बाद meeting खत्म हो जाती है, but I think today we have taken a class of more than 1 hour. So अभी तक meeting खत्म नहीं हुई. यस सर. तो break ले लें कि should I continue with my lecture? सर एक 10 मिनट ब्रेक दें, नमाज पढ़ लेंगे सर. चलें ठीक है जी. So I will continue this lecture at 4 o'clock. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. Thank you.